So dear students, in previous lecture we have studied about eigenvalues. मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. तो आइगन वैल्यूज अभी तक हमने पढ़ा है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन वेक्टर्स विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन जब आप के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है वो दोनों क्लब करके आता है. मीन्स फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स. क्लियर. तो आइगन वैल्यूज आपने सीखा है. नाउ वी विल learn how to find eigenvectors. Okay, so first of all we are going to define this term eigenvector. Consider a linear transformation. Consider a linear transformation y equals to ax. Clear. Consider a linear transformation y equals to ax. It means y equals to ax का मीनिंग क्या है? Suppose that if we have an equation like y1 equals to a1 x1 plus a2 x2 and so on plus a1, or you may write a11 x1 a12 x2 or a1n xn, and next one is y2 equals to a21 x1 plus a22 x2 and so on plus a2n xn and so on, and the value of yn equals to a n1 x1 plus a n2 x2 and so on plus a nn xn. हमने n लीनियर इक्वेशन राइट डाउन किया है. When you will write this equation in matrix form, then it becomes y equals to a11 a12 and so on a1n. This is a21 a22 and so on. This is a2n and so on. Last one is an1 an2 and so on. This is ann into x1 x2 and this is x. This is the matrix representation of the above linear equation. Very simple. हमने क्या किया? above linear equation को matrix form में write किया है. Clear? It means this is y equals to a into x, that is a is this is your coefficient matrix and x is this is the column matrix. Very simple. So we have written here y equals to ax. Y equals to ax is the symbolic representation of this one. Means this one is y equals to ax. Clear? Y equals to ax, which transforms the column vector x into column vector y. जो x column vector को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? y column vector. Clear? नाउ बेसिकली हम क्या करते हैं? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. मीन्स ये x की वैल्यू जो होता है वो किसी भी स्केलर्स के फॉर्म में होता है. मीन्स दिस कॉलम वेक्टर x ट्रांसफॉर्म्स एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. इसी के स्केलर मल्टीपल पे ट्रांसफॉर्म होता है. मीन्स y equals to ax, so you can also write y equals to lambda x. जो रियल सिचुएशन में दिखेगा वो इस टाइप का y इक्वल्स टू लेमडा x दिखेगा. क्लियर. एक तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया y इक्वल्स टू x. y इक्वल्स टू x लिखा कैसे जाता है ये मैंने आपको इसके थ्रू दिखाया है. नाउ वी आर रबिंग दिस वन. So one equation is y equals to ax. This is your equation number 1. And second one we have taken y equals to lambda x. We have taken y equals to lambda x, and this is your equation number 2. Means जो practical में दिखेगा this is like y equals to lambda x. Clear? Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we have इक्वेट करोगे लेफ्ट साइड इक्वल है, देन राइट साइड इक्वल्स टू राइट साइड.
So we have a into x equals to lambda x. That is a into x minus lambda into x equals to 0, which gives you a into x minus lambda. You can also write it lambda into I into x equals to 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स अनचेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So it becomes, when you will take x as a common, then it becomes a minus lambda into I into x equals to 0. And suppose this is your equation number 3. तो इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या हमारा आगे a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये हकीकत में क्या है, एक आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर n ऑर्डर का लिया तो n ऑर्डर का होगा, माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास n ऑर्डर का होगा। क्लियर? फ्रॉम हियर यू कैन मेक द डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा इंटू आई इक्वल्स टू 0। दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। Clear? This is known as characteristic equation a minus lambda into y equals to 0. अभी हम 0 नहीं लिख रहे हैं। If this equation becomes 0, if this equation becomes 0, that is this equation is singular. अगर ये equation singular है, क्या होगा? 0. Clear? Then you are able to find the roots of this equation. आप easily इसके roots को find out कर सकते हो। Clear? a minus lambda equals to 0, then it has how many roots? n roots. कितने रूट्स मिलेंगे? n रूट्स मिलेंगे। जितने ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतने ऑर्डर के रूट्स मिलेंगे। अगर आपने 3x3 मैट्रिक्स लिया तो 3 रूट्स मिलेगा, 4x4 लिया तो 4 रूट्स मिलेगा। ये जो रूट्स है इसको हमने क्या डिफाइन किया था? आइगन वैल्यूज। These roots are called eigenvalues. इस रूट्स को हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यूज। नाउ जितने भी रूट्स निकलेंगे उस रूट्स को हम कहां पुट करेंगे? a माइनस लेमडा इंटू आई, लेमडा की जगह। मीन्स दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लेमडा। सो corresponding to each roots इसे भी कोई नाम दे दे इक्वेशन। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। corresponding to each roots of the equation 4 we find, corresponding to each roots of the equation we find the solution of equation 3। इक्वेशन 3 का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इफ वी हैव lambda equals to 2, then you will put a minus 2 into y into x equals to 0 और आप क्या करोगे? उसको सॉल्व करोगे। a minus 2 into y into x equals to 0, तो क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। अगेन if lambda equals to 3, तो lambda के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे। देन सपोज we find the solution of equation 3। Finally we get the solution like x1 x2 x1 x2 and so on, that is xn, this is the value of capital X।
x1 x2 xn की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप पुट करोगे लैम्डा इक्वल्स टू 2 यू विल गेट a माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर आपका 3 इक्वेशन है तो x1 x2 x3 एक सेट x1 मिल जाएगा। सेकंड, अगर लैम्डा की वैल्यू 4 है तो यहाँ पुट करोगे तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग निकल जाएगा। इट मीन्स सो नोन एज आइगन वेक्टर और लेटेंट वेक्टर। क्लियर? इसको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर। अब आइगन वेक्टर को एक प्रॉब्लम्स के थ्रू भी हम समझते हैं कि कैसे हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द प्रॉब्लम।